Here are the real questions Indigo asked me during my interview. Hi everyone, this is me Kratika, and in today's video I'm going to share all the questions that I was asked during my Indigo's interview and along with how I answered them. So make sure to watch till the end if you're preparing for an interview. So in round 1, the first question that they asked me was why I want to become a cabin crew. And as I told you in my previous video that I didn't prepare anything for the interview except for the introduction. I've prepared the introduction, but they didn't ask for my introduction, so I had to just answer the question that I was asked. So they asked me like why I want to become a cabin crew, and to be honest, I just said that I was very confident first of all. So I just mentioned that I love traveling and I'm learning few languages, so I mentioned that part as well. And they just gave me like 20 seconds, not me, everyone. So they just gave 20 seconds to each girl, and maybe less than that. You had to make your first impression within those first 5 seconds. So yeah, you have to be very confident, and you should be true to your words. So if you are confident and if you believe what you are saying, you're gonna pass it the first round. For me it was like that. So in second round it was the virtual round. तो virtual round में हमसे कई सारे questions पूछे गए थे. Like it was for around 20 to 25 minutes to be honest, or maybe more than that. So the first question, no, in virtual round you have to introduce yourself, so I think you should prepare a good introduction. You know that those few minutes, the first impression can make or break things. So just prepare a good introduction. Everyone should know about themselves. So yeah, that was the thing. And then आप introduction में जो भी बताने वाले हो, just make sure कि आपको अपने बारे में एक एक चीज़ पता हो, क्योंकि वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं. And the thing was मैंने एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ and what I'm currently doing, and उसी के बेसिस पे उन्होंने पूछा, because I'm currently living in Delhi, तो उन्होंने मुझसे पूछा how many friends I have, and I don't have too many friends, तो मैंने वो चीज़ मेंशन करी. And then she asked like how often do I go out with my friends, तो वो भी मैंने उसका भी आंसर दिया. तो you just have to prepare accordingly. अब मैं इसमें ये बोलूँगी कि आप कुछ हर चीज़ प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो. यू शुड जस्ट नो कि अगर वो कुछ भी पूछें तो आपके पास एक सही आंसर हो. अगर मैंने बीच में वहाँ पे फंबल भी किया था, तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने फंबल कर दिया यू आर नॉट गोइंग टू पास द इंटरव्यू. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप फंबल भी करते हो एंड अगला क्वेश्चन आप अगर अच्छे से आंसर करते हो तो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, बिलीव मी. एंड द थिंग इज़ कि मुझसे पहले मेरी एक फ्रेंड गई थी, तो उसका जो वर्चुअल राउंड था, शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी हैज़ प्रायर एक्सपीरियंस. एंड अगर आप कुछ चीज़ें मेंशन करते हो तो जस्ट रिमेंबर कि वो वहाँ से भी पूछ सकते हैं. तो शी मेंशन हर वर्क एक्सपीरियंस, तो उन्होंने उधर से भी क्वेश्चन पूछा कि देन वाई डिड यू लेव दैट कंपनी एंड वाई यू आर लाइक अप्लाइंग फॉर दिस रोल. आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों छोड़ी है वो कंपनी, and why you want to become a cabin crew. Yeah, the crucial question is why you want to become a cabin crew. You should know why you are applying for this role. The most important thing is that अगर आपकी ये चीज़ प्रिपेयर है तो believe me, आप कॉन्फिडेंट हो, आपने अच्छे से हर चीज़ आंसर करी है, you're gonna pass the interview. And हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, I'm so sorry guys if I am confusing you or something, but the things were like that. जो आप मैं बता रही थी उन्हें, वो उधर ही से questions पूछ रहे थे. उन्होंने मेरी family related questions पूछे, and they can ask you any personal question, not too personal, but just remember कि वो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. आप अगर कुछ भी mention करोगे तो you should have a good answer. एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कंटिन्यूसली बोलना है. अगर आप अच्छे हो बोलने में, यू कैन स्पीक इट.
स्पीक आउट. एंड अगर आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो बट आपको पता है आंसर, तो देन यू जस्ट हैव टू स्पीक इट एंड आप शांत हो जाओ. देन शी गोना आस्क यू अनदर क्वेश्चंस. इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो. वर्चुअल राउंड है, वो ऐसे फॉलो अप क्वेश्चंस आते जाते हैं, आते रहते हैं. सो जस्ट रिमेंबर कि आप अपने बारे में अच्छे से जानते हो. इफ़ यू नो योर सेल्फ एंटायरली, यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू. बिकॉज और क्या ही पूछेंगे वो आपसे. वो जो भी पूछते हैं वो आपकी CV से रिलेटेड होता है, जो आपने CV में मेंशन किया होता है. आपकी एजुकेशन, आपकी हॉबीज़, आपके एक्सपीरियंसेस, everything from your CV they're going to ask you. Two things I would like to mention is that while answering, आप अपनी strengths ज़रूर बताना. In your introduction, just show them that you are capable and you are the perfect candidate for this particular role. अगर आप वो चीज़ उनको दिखा पाते हो, उनको समझा पाते हो, they will select you, believe me. So अपनी स्ट्रेंथ्स ज़रूर बताना, कैसे भी करके अपनी स्ट्रेंथ बता देना. सी आई एम गुड एट लैंग्वेजेस, आई एम लर्निंग फ्यू लैंग्वेजेस एंड मैं उनमें अच्छी हूँ. तो मैंने वो चीज़ रिलेट कर दी. दे आस्क्ड मी about why I want to become a cabin crew. I mentioned that I really love traveling, I love learning new languages and meeting new people, learning their culture, everything like that. And I'm currently learning so and so language. So yeah, that's the thing. You should mention your strengths, and they might ask you about your weaknesses as well, like what are your strengths and what are your weaknesses. So just say things like आप बहुत ज़्यादा आप बता सकते हो if you are really good at something and you sometimes overdo it, like you work a lot, you overwork. So that's a good thing. आप काम कर रहे हो, आप ज़्यादा काम कर ले रहे हो, तो उनको चाहिए ऐसे लोग जो अपना 100% दे सकें. तो जस्ट रिमेंबर दैट. अपनी वीकनेसेस भी ऐसे बताओ कि वो आपकी स्ट्रेंथ लगे. एंड द प्रो टिप इज़ कीप ऑन स्माइलिंग. जब आप इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पे everyone is watching you. सब आप पे ही नज़र रखे हैं, ऐसा आप लेके चलोगे. यू विल बी वेरी कॉन्शियस एंड आप हर चीज़ सही से करने की कोशिश करोगे. जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग. आप हमेशा स्माइल करना, भले ही आप अंदर से एकदम घबरा चुके हो, आपकी वहाँ पे रही हो, बट स्टिल आपको वहाँ पे स्माइल करनी है क्योंकि सब वहाँ पे आपको देख रहे हैं. व्हेन आई वॉज देयर, मैं वहाँ पे बस स्माइल ही कर रही थी. एंड आई थिंक दैट वॉज द थिंग दैट पीपल नोटिस्ड. एंड वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे सब आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, सब आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, सब आपको ग्रीट करेंगे. मोस्टली पीपल ग्रीट करते हैं वहाँ पे, तो आपको भी वही करना है. एंड आप जाओगे, आप इंट्रोडक्शन से पहले ही ग्रीट करोगे वहाँ पे जो भी बैठे हैं. द HR एंड द पीपल अराउंड यू, यू हैव टू ग्रीट देम. तो वो चीज़ ध्यान में रखना. नेवर फॉरगेट टू ग्रीट anyone. And what else? So as I said कि आपको हमेशा स्माइल करना है. वहाँ पे होता है ना कि जब लोग रिजेक्ट हो रहे होते हैं तो आप भी घबराने लगते हो, आपका भी दिमाग ऐसे काम करना बंद कर देता है. बट ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप को काम रखना है. मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी एंड आई मेंटेन अ गुड पोस्चर थ्रू आउट द इंटरव्यू. आपको तो वही करना है. So here I have a list of few questions that are really important. You should prepare a good answer for them. ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर ऐसे रट के चले गए. चीज़ें आप सिंपल रखो, क्लियर रखो, कंसाइज रखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. rather than just mugging it up. So just remember that आप जो भी बोलो, just make sure that you mean it. The first question that they can ask you is, tell me about yourself. आपको पता होना चाहिए अपने बारे में. As I mentioned it earlier, अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो आप क्या कर रहे हो. And the next question is why you want to become a cabin crew.
ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं आप कैसे कैसे बोल सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर कि आपको वही चीज़ें नहीं बोलनी है। अगर आपका लेट्स से आपका ये बचपन का सपना है कैबिन क्रू बनना, तो आप वो भी चीज़ मेंशन कर सकते हो, बट जस्ट डोंट बी लाइक एवरी अदर गर्ल कि आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, आई लव फ्लाइंग, इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, नॉट लाइक दैट। अपना बोलो जो भी आपका पर्सनल चीज़ है। अगर आपका सच में ये सपना है आप एक्सप्लेन करो, लाइक नॉट ड्यूरिंग दैट फर्स्ट राउंड। अगर वो है तो उसमें सिर्फ आप कुछ पॉइंट्स ही मेंशन करना है आपको, दैट ओके दिस इज़ व्हाई आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। बट लाइक लेट्स से इन वर्चुअल राउंड अगर आपसे एचआर पूछती हैं कि क्यों कैबिन क्रू ही क्यों, देन यू कैन मेंशन कि हाँ मेरा बचपन का सपना था एंड मेरी ये फ्रेंड थी उसको मैंने देखा एंड मेरी ये सीनियर थी शी इज़ अ कैबिन क्रू नाउ सो आई गॉट इंस्पायर्ड, ऐसे ऐसे करके आप चीज़ें बता सकते हो। रिमेंबर दैट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज that they can ask is like why do you want to work for Indigo, like why you are applying in Indigo, so you should know, आपको पता होना चाहिए Indigo के बारे में। तो आप प्रॉपर रिसर्च करो, आप गूगल पे देखो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा रट के चले जाओ कि इंडिगो क्या कब से, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंडिगो के बारे में, दैट इट इज़ वेरी कंसिस्टेंट, इट इज़ लाइक इंडियाज़ टॉप airline. Indigo is always on time, so just few little points here and there आपको पता है तो that can give a good impression कि आप हाँ रिसर्च करके आए हो कंपनी के बारे में, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। The next question that they can ask is how are you going to deal with a rude or upset passenger? So the first thing that you have to stay calm and patient, you should mention that, and then you will try to understand the problem of the customer or the passenger and you'll acknowledge it, and then you're going to provide a solution. You have to say state all that but in a good manner. The next question that they can ask is are you comfortable relocating or working for irregular hours? तो आपको कैसे आंसर करना है? यू हैव टू मेंशन दैट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड यू अंडरस्टैंड दैट this role requires all the work, all the hard work inputs, and you are prepared, you are mentally prepared for that. So just mention all this. You don't have to make all the things very long and lengthy, just stick to the points, main points. अगर आप चीज़ें अच्छे से मेंशन करते हो, सी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जो भी बोल रहे हो ना बस कॉन्फिडेंट रहो। They can ask you how do you deal with stressful or emergency situation. तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अगर आप भले ही बहुत ज़्यादा आप अंदर से पैनिक करते हो बट स्टिल यू हैव टू मेंशन दैट यू स्टे काम and patient, you'll try to understand the situation, you'll try to find a solution, ऐसे करके आप चीज़ें मेंशन करना। थोड़ा सा सोच के चलो and prepare this already. You should have answers for all these questions in your mind. But ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे रट के ऐसे करके नहीं बोलना है, आपको चीज़ें ऐसे बोलनी है। तो हाँ आप थोड़ा सा टाइम लेके धीरे धीरे आराम से बोल सकते हो। That will show you that yeah, you are thinking, you are speaking the words which are actually true. I'm so sorry guys, sometimes I do fumble a lot, but I am also trying. They can ask you what do you know about Indigo. That it's similar as the previous question. Why do you want to become cabin crew in Indigo, like why you chose Indigo. They can ask you describe a time when you worked in a team. तो आप अपना स्कूल का कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस बता सकते हो, कोई डांस कंपटीशन, कोई डिबेट कंपटीशन या कुछ भी where you worked in a team or maybe some play or skit, something like that. Another question is what will you do if a passenger doesn't follow safety instructions. तो आप
आपको अगेन जैसा पहले हमारा क्वेश्चन था कि एक रूड और अपसेट कस्टमर को आप कैसे एक रूड और अपसेट कस्टमर के साथ आप कैसे डील करने वाले हो. इट्स सिमिलर टू दैट. यू गonna stay calm, you're gonna explain the situation, you're gonna explain the importance of all the instructions that are mentioned and why they have to follow it and like why they have to cooperate. So आपको ये चीज़ें बतानी है and while staying calm and patient. तो ये कुछ questions हैं. कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने already explain कर दी हैं, that you have to smile, you have to maintain a good posture. Also grooming matters a lot. आपको बहुत अच्छे से ग्रूम होके जाना है. बिलीव मी, मैं बिल्कुल ढंग से ग्रूम होके नहीं गई थी. मैंने वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें करी, जैसे कि मैंने पोनी की थी एंड जूड़ा नहीं बनाया था मैंने. यू शुड लुक मोर प्रोफेशनल एंड यू शुड लुक लाइक हाँ आप इस जॉब के लिए रेडी हो, आप इस रोल के लिए परफेक्ट हो, आपको मेकअप करके जाना है. मैंने नहीं किया था एंड वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई थी गाइस. अब जब बहुत सुंदर सुंदर लोगों को देखते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है कि माय गॉड मैं होंगी सिलेक्ट, बट ऐसा नहीं करना है. आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आई एम परफेक्ट फॉर दिस रोल एंड आई विल गेट थ्रू इट एनीवेज. ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द दोज मोमेंट्स जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डगमगाता है. नाउ स्टोरी टाइम. अगेन वहाँ पे जब मैं गई तो आई वॉज नॉट वेल ग्रूम. मैंने मेकअप ढंग से नहीं किया था. इट वॉजेंट विजिबल. मुझसे सब बोल रहे थे हैव यू इवन अप्लाइड मेकअप. सो मैंने किया था बट मेरे हिसाब से वो काफ़ी था, लोगों के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं था. तो आपको मेकअप अच्छे से करके जाना है. रिमेंबर गाइस, ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको आपकी ग्रूमिंग से बहुत ज़्यादा जज करते हैं. तो अगर आप पोनी करके जा रहे हो बहुत ऐसे बैगी, तो आप एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर में जाओ. एंड इफ़ यू वांट अनदर वीडियो ऑन दैट आई कैन मेक अनदर. इफ़ यू वांट वीडियो ऑन ग्रूमिंग आई कैन मेक दैट. सो यस, ये चीज़ याद रखना कि आपकी ग्रूमिंग अच्छी रहनी चाहिए. ऑल्सो प्रॉपर पॉस्चर, द स्माइल, द कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू ग्रीट एवरीवन. नॉट एवरी वन बट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको आपको लगता है कि ग्रेट करना चाहिए. यू शुड ग्रेट एवरी वन एंड देन आपको स्माइल करना ही करना है. मैं बार बार ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी किया था. तो आपको बहुत पोलाइट रहना है, बहुत काम रहना है कि लोग यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन वहाँ पे. तो वो चीज़ आपको याद रखनी है बिकॉज अगर आप रिजेक्ट हो गए तो वहाँ पर फिर हु इज़ गोइंग टू बी एट फॉल्ट. आप चिल्ला रहे थे, आपने फर्स्ट क्रिएट किया. You know that, right? So guys, that is it for today. If you have further questions you can comment them down and I'll try to answer them. I always do. कोई भी query है you can follow me on Instagram, you can DM me and I'll try to help there as well. And मैंने जो भी चीज़ें mention करी, just keep those things in mind and be good to go. आप अच्छा करोगे. Just believe in yourself. So now I'll take my leave. Bye bye. See you in the next one. Also don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. See ya.